Hello students, let us continue with modals. Students, earlier we have done the use of should, that was used to express suggestion, recommendation and advice. Now we are doing modal must, have to and ought to. What is the difference between must, have to and ought to? First of all, let us take the use of must. Must is used to express necessity, obligation and compulsion. What is compulsory? What is necessary? Obligation, you are obliged to do this. In these cases we shall use must. For example, you must get up early in the morning, you must improve your handwriting, okay, you must come to school in time. Compulsion, for example, you must pass matriculation examination to enter intermediate or +1 classes. These are compulsion and necessity, obligation. Okay, so you will use must. You must improve your handwriting, for example, you are saying. Okay, then we have must is used to express strong sense of duty. In when we were using should, we were saying duty, you should respect your elders, you should obey your parents, but here you are talking about strong sense of duty. For example, you will understand with the sentences. Number 1, a teacher must be honest. A teacher must teach his students honestly. नंबर 2, अ जज मस्ट बी इम्पार्शियल. देखिए जज क्या होना चाहिए, इम्पार्शियल, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेगा, सब उसके लिए सेम है. ठीक है, तो हम पहले वाले में हमने क्या किया, मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, आवश्यकता है. ठीक है, ऑब्लिगेशन है, कंपल्शन, कोई चीज़ जरूरी है. जैसे आप बोलते हो कि अगर आपने +2 पास करनी है, मैट्रिक पास करनी है, तो आपको मैथमेटिक्स में भी पास होना आवश्यक है, इंग्लिश में भी पास होना. हम बोलते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट. अगर आप बोलेंगे यू शुड पास, दैट इज एडवाइस, मतलब हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं, नो, दैट इज कंपल्सरी. ओके, जैसे आप बोलते हैं सपोज यू आर टायर्ड एंड आई एम सेइंग यू शुड टेक रेस्ट, दिस इज माई एडवाइस टू यू. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू फॉलो दैट or not, whether you obey that advice or not. But when I am saying you must take rest or your health will be deteriorated. Okay, तो ऐसे to express strong sense of duty, the teacher must teach his student honestly, a judge must be impartial, a doctor must save his life. We can't say that a doctor should save his life. Okay, a doctor should save the life of his patients, we can't say that because that is just advice. Okay, so he will have to work for that. So अगला क्या है इसमें, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी. स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी आपको करना ही है. एक मैं आपको बोल रहा है आपको ये करना चाहिए, एक मैं बोल रहा आपको ये करना ही है, आपको करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, must is used in present tense or near future, for near future, but must has no past form. must की कोई past form नहीं है, must का past नहीं होता है. अब अगर past में आपको लिखना ही पड़े तो आप क्या लिखोगे, तो must past के लिए क्या है, had to, that is the past form of have to. ठीक है, फिर इसके बाद में अभी आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड हैव टू. ठीक है, लेकिन यहां पर टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, मस्ट हैज ओनली प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर फॉर्म बट इट हैज नो पास्ट फॉर्म. ओके, अगर पास्ट में लिखना ही पड़े तो सबके साथ हैड टू आएगा, चाहे वो कंपल्शन है चाहे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी है. ठीक है, देन टू एक्सप्रेस लॉजिकल सर्टेनिटी. लॉजिकल सर्टेनिटी, लॉजिकल सर्टेनिटी क्या होती है, देखिए जैसे आप एक गैस करते हो. सपोज one of your friends, you are calling him and he is not picking up the phone, he is not attending your phone, you will say वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, शायद सो गया होगा, शायद घर पर नहीं होगा.
ठीक है, लैंडलाइन पर आप फ़ोन करते हो तो नहीं उठाते, तो आप क्या बोलते हैं, शायद घर पर कोई नहीं होगा। दैट इज़ लॉजिकल सर्टेनिटी, आपकी ओर से ऐसा लगता है, ठीक है, लॉजिकल है कि तभी नहीं उठा रहा, अदरवाइज क्यों ना उठाता। ठीक है, तो जैसे आई एम कॉलिंग हिम बट ही इज़ नॉट अटेंडिंग माई फोन, ही मस्ट बी आउट ऑफ होम। ठीक है, ही मस्ट हैव गॉन टू बेड, ही मस्ट हैव बीन बिजी। ठीक है, तो ऐसे आपने लॉजिकल सर्टेनिटी इस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा कि यू शुड टेक रेस्ट, यू मस्ट बी टायर्ड, यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर वॉकिंग माइल्स एंड माइल्स, यू मस्ट बी टायर्ड मीन दैट इज लॉजिकल सर्टेनिटी। इतना चलने के बाद थकते तो हैं ही हैं। ठीक है, वो एक लॉजिक बनता भी है, तो आप क्या बोलेंगे, यू मस्ट बी टायर्ड, प्लीज टेक रेस्ट, यू मस्ट बी टायर्ड। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट वन वाज नेसेसिटी, सेकंड वन वाज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, और तीसरा था टू एक्सप्रेस लॉजिकल सर्टेनिटी। से समझाता हूँ, आप किसी अपने फ्रेंड के घर गए, ठीक है, गपशप मारी, 5 बजने लगे, आपने अपने फ्रेंड को बोला नाउ आई मस्ट गो, ठीक है, आई मस्ट टेक अ लीव, मेरे को अब जाना चाहिए। इट मीन्स कि यू थिंक दैट यू शुड गो, द कंपल्शन इज फ्रॉम योर ओन साइड, द स्पीकर थिंक्स इट सो, आई मस्ट गो, आपने फ्रेंड को बोला चलो यार टाइम हो गया, आई मस्ट गो। लेकिन जब तो उसको सुनने वाले को क्या लगा कि द कंपल्शन इज फ्रॉम योर, यू वांट टू गो। ठीक है, ये आपकी ओर से है, यू थिंक दैट इट इज नेसेसरी दैट यू शुड लीव, बट इफ द टू द सेम फ्रेंड यू आर सेइंग ओके फ्रेंड I have to go. I have to go mean he will understand that the compulsion is not from your side but from somewhere else. Not somewhere else क्या हो सकता है, आपने घड़ी देखी 5 बज गए, आपको लगा कि यार, आपको लगा क्या, आपको पता है, ठीक है, कि 5:10 पर मेरी बस निकलने वाली है, तो वहाँ से निकलोगे तब तो पहुँचोगे बस स्टैंड। तो आपने उसको बोला आई हैव टू लीव, आई हैव टू लीव क्यों, बिकॉज एट 5:10 यू विल बोर्ड द बस। ठीक है, तो उसकी ओर से है। जैसे सपोज एक ममा आपको बोल रहे हैं यू मस्ट वियर हेलमेट वाइल राइडिंग योर मोटर बाइक, ये माँ की ओर से, इसका मतलब है कि मदर इज वरीड अबाउट यू, शी इज वरीड अबाउट दैट समथिंग अनटूवर्ड शुडंट हैपन टू यू। लेकिन अगर वही मदर ऐसे बोल रहे हैं कि यू हैव टू वियर हेलमेट, इसका मतलब मदर क्या बोल रहे हैं कि दिस कंपल्शन इज फ्रॉम समवेयर एल्स, कोई दूसरे की ओर से। किसकी ओर से, बाहर जाओगे चलान हो जाएगा। पहले मम्मी चलान के लिए चिंता नहीं कर रही है, आपकी सिर की चिंता कर रही है, आपकी बॉडी की चिंता कर रही है ताकि आपको कुछ हो ना। लेकिन जब आप मम्मी ने ये कहा कि आई यू हैव टू वियर हेलमेट, इट मीन्स शी इज़ वरिड दैट आपका चलान कट जाएगा, आपको फाइन पड़ेगा। ठीक है, तो वो हैव टू उसकी साइड से है। ठीक है, उस साइड से हो जाएगा। जैसे सपोज आप मम्मा को बोलते हैं मम्मा नाउ आई एम गोइंग टू बेड, I must get up early in the morning. I must get up early in the morning, that you think that you should get up early in the morning because you have lot of work to do. वो आपकी ओर से कंपल्शन है। लेकिन सपोज आपने सुबह 7 बजे वाली बस पकड़नी, तो आप मम्मी को बोलेंगे मम्मा आई शुड गो टू बेड नाउ, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मीन्स यू आर गोइंग टू कैच 7:30 बस, और 7 o'clock वाली जो बस है उसको पकड़ने जा रहे हैं, इसलिए कंपल्शन वो आपके लिए नहीं रुकेगी बस। ठीक है, तो ये किसकी ओर से है, ये आपको क्लियर हो गया। अब बेटा क्या है, पास्ट ऑफ मस्ट इज हैड टू। पास्ट का कोई भी जो मस्ट का पास्ट है वो नहीं होता है, मस्ट हैव करके पास्ट नहीं बनता है, वो प्रेजेंट ही रहेगा, फ्यूचर ही रहेगा। लेकिन अगर पास्ट में लिखना है तो आप हैड टू लिखोगे, तो वी हैड टू गेट अप अर्ली यस्टरडे। अब देखो, जैसे आप अपने फ्रेंड के घर गए, ठीक है, आपने क्या किया कि आप अपने फ्रेंड के घर गए, फ्रेंड के मम्मा आपके लिए चाय बनाने गए, लेकिन आपने घड़ी देखी 5 बज गए, आपको 5:10 पर बस मिलती है, फ्रेंड की मम्मा तो किचन में ही है, शी इज़ प्रिपेयरिंग टी फॉर यू, लेकिन आपने घड़ी देखी और आपने फ्रेंड को बोला आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू टेक लीव। आप चले गए क्योंकि कंपल्शन दूसरी ओर से, टाइम टेबल, बस का टाइम टेबल ही वैसा है। अब जब उसकी मम्मा चाय लेकर के आए, आप वहाँ पर थे नहीं,
नेक्स्ट डे जब आप आए तो आपको फ्रेंड की मम्मा ने पूछा, बेटा कल मैंने आपके लिए चाय बनाई, आप कहाँ चले गए थे? आपने बोला, आंटी आई हैड टू गो। आई हैड टू गो मीन इट वॉज नॉट माई प्रॉब्लम, इट वॉज टाइम टेबल। अगर ना जाता तो बस छूट जाती। तो वो कंपल्शन या ऑब्लिगेशन किसकी ओर से थी? फ्रॉम समवेयर एल्स, आपकी ओर से नहीं थी। आप तो 1 घंटा और बैठ लेते, चाय पी लेते, लेकिन नहीं, तो आपको बस ना मिलती। तो आपने उनको क्या कहा? यस्टरडे क्यों चले गए थे बेटा? आई हैड टू गो, ठीक है, टू कैच द बस, ठीक है। तो वो आपने, ये आपको क्या हो गया? पास्ट ऑफ मस्ट, हैड टू। तो ये सिंपल सा कि जो शुड है, शुड में एडवाइस है, रिकमेंडेशन है। जैसे सपोज मैं आपको ये बोलता हूँ, यू शुड रीड दिस बुक। मैंने कोई आपको बोला, दिस इज़ अ वेरी गुड नॉवल, यू शुड गो थ्रू इट, दिस इज़ मोटिवेशनल बुक, यू शुड रीड दिस। ये रिकमेंडेशन है, इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू लाइक टू रीड इट और नॉट टू लाइक, आई कैन नॉट फोर्स यू। बट सपोज this book is in your syllabus, then I will say you must read this book, ठीक है, ये आपको पढ़नी है। आई थिंक दैट यू मस्ट रीड, मेरे को लगता है कि आपको ये पढ़नी चाहिए क्योंकि दिस इज इन सिलेबस, कंपलसरी है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो किसी ने ये कह दिया आपको, ओहो आपने ये बुक पढ़ी, ये क्यों पढ़ ली? आपने बोला आई हैड टू रीड दिस बुक बिकॉज दिस वॉज इन सिलेबस, ठीक है। तो हैड टू बोल दिया तो पास्ट हो गया, मस्ट हो ही नहीं सकता उसका, ठीक है। तो ये वी हैड टू गेट अप अर्ली यस्टरडे, दिस इज पास्ट, ओके।